अब हम गंदी वाली बातें करने लगे थोड़ा सा। पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। साउथ कोरिया जिंदाबाद। I'm still asexual, cannot date. Thank you. I'm straight. अच्छा क्या होता है उसको पूरा बोलने दो। निकालो कुछ। किस तरह का फन चाहती हो? ड्रग्स को कैसे भूल गई? सब कुछ तो कह रही है तू। नहीं तो यार ये क्या मजाक। BNU is great. Actually, यहाँ पे सीखने को काफ़ी मिलता है and it's like different than what other universities are teaching us, so that's great. खुदा you बताओ. You बताओ. Okay, it was fun. I mean, मैं अभी वहीं पे सॉन्ग सुन रही थी, ये लोग अपने गाने नहीं चेंज करते, मैं जब से आई हूँ एक ही गाना सुन रही हूँ। So अगर ये सॉन्ग्स अपने चेंज करें, it's overall so fun. How's our experience? क्या एक्सपीरियंस जा रहा है? Very good, but I don't like it. आपका थर्ड सेमेस्टर है? यार बहुत अच्छा जा रहा है ऑनेस्टली। अच्छा है, it's nice. ज़्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी गुजर रहा है। हाँ, थोड़ा slow down हो। जल्दी गुजर रहा है, ये आहिस्ता थोड़ा आराम से गुजरे, लेकिन मजा आ रहा है। हाँ। I think it's been going great. BNU's life is very much colorful. It's diverse. It has given me a lot of new experiences. So it's been going very well. Our experience overall was really good because we came from a school that relatively made our self-esteem deplete. But overall, you thought that university would be much worse because it's an experience that's going to be the best experience and the most challenging experience of your life. Because after university, you are slowly coming into an adulthood and you're having bigger responsibilities. But it's not as intimidating as it looks. I think it was a very, very good experience. And it was very fun. And it's a very liberal environment. So it feels like its own little bubble. Yeah, the diversity actually, it makes you really open-minded. So I think that's a great thing. And I get to come here with one of my childhood friends. So it's great. Even though she sucks, but it's great. I hate her. You suck. I love her. Ew. It's been a roller coasting ride. BNU आने से पहले मैं पूरा दिन इस तरह होता था. BNU आके अब मैं इस तरह हूँ. BNU. The workload is very high. It's kind of depressing. Like What I was expecting was कि हमें बहुत फन करने को मिलेगा, जो कि मिलता है चंक्स में. Rarely. हाँ, काम नहीं करने को मिलेगा, जो कि मजाक था. बहुत काम करना और ये पड़ता है. सबसे बड़ा झूठ है कि BNU के बच्चे बहुत वेली और फारिग होते हैं. हमारे पास इतना काम होता है, इतनी असाइनमेंट्स होती हैं. प्लीज़ ये जो किसी के हर किसी के दिमाग में है कि BNU के बच्चे डोंट डू एनीथिंग. प्लीज़ वी डू अ लॉट ऑफ वर्क. How is it, guys? I think it's been good. I've met good people. Yeah. I've met good teachers. I think it's fine. It is. People are very understanding and not judgy at all. Yeah. So that's This is good. the best part about it. Yeah. Yeah, it's going good. It's been fun. It's Yeah. ending. It's ending We for will us. miss it. Yeah. It's very nice so far. लोग बहुत अच्छे हैं. Teachers, faculty, at least हमारे डिपार्टमेंट की तो बहुत अच्छी है. और कुछ ज्यादा ही अच्छी है. हाँ. बहुत अच्छी है. दोस्त बहुत अच्छे हैं. दोस्त chill हैं. बहुत अच्छे हैं. जज नहीं करते. कुछ बहुत अजीब से हैं, लेकिन कुछ बहुत अजीब से हम उनकी बात और बड़ी नहीं बात है करते. यहाँ पे जज नहीं किया जाता. हाँ. ये No बहुत one बड़ी बात है. judges मतलब पाकिस्तान में ये anyone चीज़ बहुत बड़ी है कि यहाँ पे हाँ. जज नहीं किया जा रहा एक जगह पे. बहुत एक्सेप्टिंग लोग हैं. सब they're very nice here. I guess my experience is going good. Like जैसा मैंने पहले सोचा था कि हाँ BNU में सिर्फ यहाँ नशे वगैरह ही होते हैं. आपका स्वैड के एक स्टूडेंट होने के तौर पर ना आपका जो है ना आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड आई थॉट दैट्स गुड कि आप अपनी यहाँ BNU आने के बाद, मेरे अंदर वैसे इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी, लेकिन स्वैड में एडमिशन लेने के बाद आई थॉट कि मेरी बढ़ चुकी है. दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस इज गुड. So far, BNU is a really exciting place. मुझे तो बहुत मज़ा आया है. मैंने बहुत पहले ही सोच रहा था BNU आऊँगा, अपनी लिबरल आर्ट्स की डिग्री करूँगा और अपना करियर परस्यू करूँगा. Up till now, it's going good. Like first semester, it's going good. Well, coming here was like a very tricky part because I've struggled a lot in life. But coming to BNU was like a very nice experience for me. Excellent experience because I get to know a lot of people. I get to meet a lot of people from all over the globe, and it's really fun. so far, I think it's pretty good and decent. Yeah, not so bad. What I thought about initially, but
बस थोड़ा ये है कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। मतलब हमारे जो इवेंट्स हैं वो थोड़े कम होते हैं, जैसे फेस्टिवल है वो सिर्फ ईयरली है, उसके अलावा कोई इवेंट नहीं होता, बहुत ड्राई लाइफ हो जाती है एकदम से। I think the cigarette ban and vape नहीं कर सकते आप हर जगह classrooms में या department के अंदर. That is a good change. Also, he sends videos, so it's. He's very interactive, which is like wow. It's a way to stay connected with him. Yeah. I think briefly. We're very uneducated. No, I know briefly. They mentioned that there were a few management issues and a few issues with the curriculum, which they recently advanced or changed up for the ease of students, so less people fail and whatnot. I think they did a really good job. I think it was very easy. It was a little stressful, but easier than school, easier than O levels and A levels as a whole. So I would say it was a really nice experience, and you learn a lot too. Like I feel like my skill has changed massively in these 4 months. Yeah, Yeah, there's a lot of strictness right now. Like which is, I suppose, better for the future of the child, because like जो हमसे seniors थे वो काफ़ी ज़्यादा spoiled थे, हम उतने नहीं हैं, हमें उतनी privileges नहीं मिलती as compared to them, क्योंकि वो लोग यही कहते हैं कि like BNU is now becoming paper-free university, I guess, which is like the first university who's gonna be this one. ये सीन हुआ था VC के आने से पहले जो था कि बहुत सी स्मोकिंग, आप लोगों को एक तो बेसिकली सेंस नहीं है कि आप कैफ़े में जाके वो स्मोक कर रहे होते हैं, जो कि VC ने बंद करवा दिया है। और दैट्स गुड पॉइंट कि आप सिर्फ स्मोकिंग एरिया में ही स्मोक कर सकते हो, बिला वजह हर पूरी यूनिवर्सिटी में आप स्मोक नहीं कर सकते, तो दैट्स गुड। Pehle, I'm not sure, but after that, the VC has done quite a lot. Like, he spoke about things I did not spoke before, because I didn't mention before. So, most probably, he's going to do quite well for the BNU as a whole, because he's going to keep it like a string attached. So, hopefully, it'll make a benefit for all of us. VC हमारा चेंज हुआ है, ये VC जो है हमारा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है। जो पहले यहाँ पे सरेआम ड्रग्स वगैरह होते थे वो ड्रग्स को बैन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम था इस चीज़ से, वो इस नाम को ख़त्म करना चाह रहा है और मतलब यूनिवर्सिटी को आगे लेकर जाना चाह रहा है। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है वो कर रहा है। बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहा है VC। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगे उसके जो स्टेप्स, बहुत जल्दी काम हो रहे हैं आपके। हाँ, वो चीज़ वाकई अप्रिशिएट करने वाली है VC। So yeah, that's fun. But I have an issue, like there is no factor left of liberalism. हम पे काफ़ी ज़्यादा लिमिट और बाउंड्रीज आ गई हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए कोई ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। Exactly, because like when you're doing art, you don't have any restriction to do that. अगर आप आर्ट कर रहे हो, that is art के ऊपर कोई भी like restriction अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर वो आप अपने थॉट्स को बाउंड्री के अंदर ले जाते हो, which is not a good part. अगर आप अपने थॉट्स को fully express नहीं कर सकते हो तो फिर उनका फ़ायदा कोई नहीं। I think VC जब से आए हैं, he did an amazing job. उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिए आते साथ ही, जो पहले VC ने बिल्कुल नहीं किया था। एंड सेकेंडली इज़ वेरी डाउन टू अर्थ जब वाले VC हैं, वो बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेते हैं, बहुत डेडिकेटेड टाइप है, तो वो हर जगह वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ये भी है कि मतलब he is a little young as compared to the previous VC, और वो थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड है, सही है। और मतलब मैं फुटबॉल टीम में हूँ तो इसलिए थोड़ा फ़ायदा में ये है, उन्होंने आते साथ फ्लड लाइट्स लगा दी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग बहुत ईजी हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि मतलब टू सम एक्सटेंट वो कुछ इशूज़ को अब जाके वो थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू हो गया, जैसे हॉस्टलाइट्स के इशूज़ हो गए, ठीक है, मतलब हॉस्टलाइट्स को सर्विसेज सही नहीं दी जा रही, वो थोड़े इग्नोर हो रहे हैं, लेकिन बट ही स्लोली बट श्योरली ही इज़ वर्किंग ऑन देम। It's very. Can you speak up loud? She said the food is trash. But that's not fun, Momina. What's fun? लोग कहते हैं BNU में पढ़ाई नहीं होती है। I swear आके देखें ब्रो, मेरा पागल कर दिया। Yeah, especially in your last year. Please, it's insane. It's scary. Yeah. I feel like normal universities में वो सिर्फ आपको research paper लिखना होता है, यहाँ research paper भी है, आपको अपनी डिस्प्ले भी करना है, फिर उसकी प्रोसेस बुक भी बनानी है। मतलब हमें ज़्यादा ख्वार करते हैं, तो बहुत पढ़ाई है। I thought यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन होती है। The people here have a lot of money.
I'm not too sure about that part, but I think it's really nice that it kind of woke us up when we saw people doing things that are not like stereotypical actually. And they were challenging norms. It was really interesting to watch, and it was nice. I feel like I have a lot of hope for our generation. I know a lot of people say, ew, Gen Z this, Gen Z that. No, I'm really proud of our generation. I think we're doing a really good job at a lot of other things. Yeah, I think the people actually are the highlight of this place. They're Yeah, really definitely. open-minded and genuinely very caring. So that's really good. Koi ragging bhi nahi hoti, thank God. Otherwise, we would have been beaten up. No drugs, so no bad. ragging. We're really surprised. We came 100% prepared for that. We didn't experience anything that would be challenging in that regard. Yeah. Interesting facts. So the best thing that about BNU is that you'll find different type of people. It's like the diversity here is amazing. You'll find every type of every different ethnicity, people from different countries, from different backgrounds. So that's the best thing that I like about BNU. मुझे लगता है लमिन से ज़्यादा बुरा है। एक बार तो मैक एंड चीज़ खाया था, it was like ऊपर slices डाले हुए थे stack cheese। BNU में actually attendance के ऊपर काफ़ी strict हैं ये लोग, which is kind of sus and kind of sad, but it's okay. उसके अलावा यहाँ पे events वगैरह काफ़ी अच्छे हैं. The cultural day was great. हाँ, I guess the every Thursday the parties and वो concerts. मुझे कॉन्सर्ट का भी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है क्योंकि BNU VC ने एडकस बंद कर दिया. आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पे वाइब में बेसिकली यहाँ पे वाइब लेने के लिए आई थी और वो मिल रही है. बहुत मज़ा है यहाँ पे, आके देखो तो सही तरह. नहीं है, कभी कभार बहुत फन होती है, कभी यानी इट्स गुड ओवरऑल. पढ़ाई भी और फन भी, ये अच्छा है. रोज फन होता है यार. पढ़ाई और फन दोनों साथ साथ चलते हैं डेफिनेटली. कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि मुझे लगा था कि यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह तो होंगी, मतलब लाइक इवेंट्स में तो होती हैं, लाइक मुझे लगा रेगुलर लड़ाइयाँ वगैरह भी होंगी, लेकिन यहाँ पे लड़ाई वगैरह इतनी नहीं होती. लोग अपने काम से काम रखते हैं. खुदा तुम बताओ होस्ट साइड लोगे क्या अच्छा है. I feel like swag in general, it's accepting, really accepting. तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यहाँ लोग दे रियली ड्रेस गुड एंड यहाँ के लोगों की वाइब मज़े की है. लाइक जज नहीं करते, फजूल बोलते नहीं है किसी के बारे में एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़. और फन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इज खाना बहुत आ रहा है, ठीक है. यहाँ का फेस्टिवल्स आई डोंट नो अबाउट इट बट इट्स गोना बी गुड. यहाँ की डिग्री अच्छी है, यहाँ का माहौल अच्छा है, फ्रेंडली लोग हैं. मतलब देखिए फन फैक्ट नहीं है, लेकिन एक ये बात है कि आपको BNU का फन अपने लिए खुद बनाना पड़ता है. जो लोग ये सोच के आते हैं ना कि BNU पार्टी है, पार्टी बिल्कुल भी नहीं है. आप जिस तरह अपनी सोशल लाइफ गुजारोगे, ठीक है, द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, जितना बड़ा आप सोशल सर्कल बनाओगे उस हिसाब से आपकी लाइफ होगी BNU में, ठीक है. आपको बनी बनाई सोशल लाइफ नहीं मिलेगी. Your company matters a lot. No. बहुत ड्रामा. नहीं बस. I mean, नहीं. पता नहीं, गॉड नोज, मुझे क्या पता. searched for it. Yeah. आना होगा, आ जाएगा. I hope. Oh no, I'm asexual. I'm not interested. I'm very much interested, but I have no hope. But the people here, Yeah. do find your soulmate here. We've seen a lot of pairings made recently. Okay, shit. I wasn't prepared for that. I don't know. I mean, life is unexpected, so you never know. In the next year. Alhamdulillah, no. यार for sure no. For sure, no. For sure Okay. no. Okay. यार देखो मतलब अच्छे हैं, but I think they're very immature, all of them mostly. Sorry. सही बात है. देखें, मिल गया तो अल्लाह की मर्जी, ना मिला तो ना से. नहीं, मैं तो ढूंढ के जाऊंगी. ये जाएगी ढूंढ के, इसको ये तो सबसे ढूंढ के जाऊंगी. नहीं. No. I tried in 1 week and it wasn't possible. I was like, fuck off. Literally. I don't know. I'm not interested over here. Same. They're kind of shit. Same. No. इधर नहीं मिलता, इधर कुछ नहीं मिलता आपको. Rather डिप्रेशन, एंजाइटी के We अलावा. would rather just focus on our career, like. लेकिन अगर किसी को ये वीडियो देख के मैं पसंद आ जाऊँ तो प्लीज़ मुझे रीच आउट कर सकता है. ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ प्लीज़. I would rather stay single. नंबर दे दूँ? 0900078601. Telephone. I'm not thinking. I swear I'm not thinking about this. Soulmate depends. Depends how I see who I meet.
I mean, it's about a person's perspective about dating and everything. I just think dating at this age doesn't really lead to much, but that's just my perspective. I'm still asexual, cannot date. Thank you. I'm straight. Thank you. इसके बारे में मैं अभी सोचा नहीं है, अभी फ़िलहाल मेरा करियर पे फोकस है, जो पढ़ाई काफ़ी, क्योंकि मेरी पढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। आपने इस वक्त लगता है वक्त गुजरने में, तो देखो लाइक सोलमेट मिल गया तो आई वुड माइंड। सोलमेट तो यार कहीं भी मिल सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में। As you said earlier, there's a highlight because they're very fun. They are really talented, and they have like, there's so many different backgrounds. You get to hear such interesting stories. You get to hear such interesting traumatic experiences. You hear a lot, and you see people that are so different from you, and their perspectives, their religions are different, their ethnicities are different, and the way they think and their future goals are so different. So that really inspires you to like keep thinking or keep looking forward to the future, because you get to meet people so much more different than you. Same answer, actually. Yeah, I think that after coming here, meeting different people, it's kind of made me open-minded as well. So yeah, I guess, hopefully. Right, Khadija? No, we changed for Thank the you. better, Thank definitely. एटमॉस्फेयर नाइस मतलब कि बहुत ही रिलैक्सिंग है एवरीवन अपना हर कोई अपना काम करता है। आई थिंक यहाँ पे जज नहीं करते लोग, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। काम से काम रखते हैं, काम से काम रखते हैं, दैट्स व्हाट वी वांट। जीने दो और जियो। Exactly. The people are great, they're kind of sweet, and which is quite nice. And यहाँ पे अपने लोग मिल जाते हैं, because first week में आके I thought I can't relate to anyone, but like यहाँ पे आके it was quite normal and easy to like make friends. And yeah, some people don't work, but it's okay. We kind of have to force them to work in group projects. Not you, not her, someone else. I'm good. Yeah, making friends was like really easy यहाँ पे. Depends on you. Whether you want it to be good or toxic, that actually depends on you. Because like you can find every suitable here, but You can find all kind of people here. yeah, I guess 500 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है that whom you gonna fit in. Yeah. पीपल आई नो आर गुड, बाकी मुझे नहीं पता। It's actually really nice. हाँ, it's nice, chill है। Like I said, बहुत बहुत chill यहाँ है। पे, बहुत सुकून है। तभी हम इतने टाइम तक यहाँ पे। हाँ, मतलब मैं घर चली जाती हूँ honestly। मैं यहाँ इस वक्त बैठी हूँ, शाम हो रही है, it means it's really nice, बहुत अच्छा है। ओवरऑल लोग तो जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्नैक्स भी हैं, ऑब्वियसली हर जगह होते हैं, स्पिटिंग फैक्ट्स, तो बस नॉर्मल है। पीपल इन BNU में आपको पहले बता चुका हूँ, लाइक अच्छे लोग भी वो तो डिपेंड करता है यार, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बट BNU में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रूम लोग हैं, लाइक जज नहीं करते, फजूल बातें नहीं करते, बैक बाइटिंग, बाकी स्नैक्स वगैरह तो हर जगह होते हैं। ये डिपेंड करता है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ठीक है। आप BNU में जिस एरिया जाते रहोगे ना, लाइफ आपकी और जो लोग हैं वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। SP में आपको थोड़े फ्रेंडली लोग मिलेंगे, ठीक है, आप इंटरेक्ट इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप स्वैट वाली साइड पे जाओगे, वहाँ पे भी थोड़ा सा लोग ना आपसे बचते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे उनके करीब जाओगे तो दिल लाइक ट्राई टू बी मोर प्राइवेट, ठीक है। SMC वैसे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, उनको अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना। और आर्किटेक्चर वालों के पास तो टाइम नहीं लगता। हाँ, आर्किटेक्चर वालों को वो हमें कहीं नजर नहीं आते, ठीक है। तो ये है बेसिकली BNU की लाइफ। Horrible, बहुत बुरा, terrible. Why is there no festival? ये मैंने पूछना था, अच्छा सवाल है, क्यों नहीं हो रहा? मैंने सुना है फेस्टिवल मार्च में हो रहा है। Yeah, we have heard. हाँ, I haven't really been to festival, so I was looking forward to it क्योंकि आखिरी साल है, but like हुआ ही नहीं। Not really. I mean, I spoke to the music president. He said that it's going to happen in Feb, I'm assuming. So I am still looking forward to it. And speaking from the Music Society, I think और भी काफ़ी activities हुई थी. So I'm not disappointed at all, actually. It was fun. I mean, I had no idea before about the festival, but now I feel like it's a big deal and there should be one. I don't know. Yeah, I feel like there should be. यही कि बहुत दुख है हमें, हम बहुत ज़्यादा वेट, क्योंकि मैंने बहुत सुना था पर मैंने कभी अटेंड नहीं किया पहले कॉलेज टाइम में भी, लेकिन अब आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट
फेस्टिवल लेकिन हुआ नहीं। हम मैनेजमेंट टीम में भी थे तो वी वर एक्साइटेड। वो मीटिंग्स थोड़ी सी अनोइंग होती हैं बट स्टिल वी वर एक्साइटेड। एफर्ट की पिक्चर्स वगैरह खींचे लेकिन वो हुआ ही नहीं और फिर बस मैंने एक अटेंड किया था एंड वाज द वर्स्ट वन बिकॉज इतना रश था, मेरे ऊपर 10 आदमी चढ़ गए बिकॉज इट वाज वेरी वेरी chaotic. थोड़ी सी मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मसला है। नहीं, but kind of used to it coming from phase 1 एंड LGS यहाँ पे इवेंट्स काफ़ी डिले होते हैं, हमें आदत हो चुकी है। हमारा फेयरवेल डिले हो गया था तो यहाँ पे आके आई डोंट इवन माइंड इतना ज़्यादा, सो इट्स ओके, होना चाहिए। शी माइंड्स। वी आर वेरी सैड। आई लिटरली लाइक दर्जी को देख के मैंने काला जोड़ा सिलवाया था अपना कवाली के लिए, जो कि अब मैं ढोलकियों पे पहन रहा हूँ लोगों की, लेकिन वो फेस्टिवल नहीं हुआ। बट आई एम काइंडा ओकेश विद दिस बिकॉज लास्ट टाइम वाला बहुत गंदा हो गया था फेस्टिवल। वैसे आई वांट टू से लाइक एक दफ़ा का एक्सपीरियंस आप एक चीज़ बैन नहीं कर सकते, दैट्स अनफेयर विद द पीपल हु आर कमिंग। इट्स नॉट बैन येट। वैसे आई एम एक्साइटेड फॉर फेस्टिवल के फैशन वॉक, कॉन्सर्ट वगैरह। लाइक I was my sister is also studying here, so she told me like festival is a great thing of BNU, और वो मतलब कि लोग भी बाहर से फेस्टिवल को ही जान के BNU आते हैं, so I'm excited. Well, actually I have मैंने एक फेस्टिवल पहले अटेंड किया हुआ है इसी यूनिवर्सिटी में, और फेस्टिवल इज़ ऑलवेज वेरी ग्रेट, बहुत मज़ा आया था। इस साल नहीं हुआ है, वेरी सैड। मैं तो अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि फेस्टिवल हो, क्योंकि फेस्टिवल के बगैर यूनिवर्सिटी और BNU का फेस्टिवल अधूरा है, अधूरा सफ़र। Well, I feel like not just sad, like mixture feelings, but hopefully the best will happen this year. Next year will be fruitful. मानू को बुला लें यार, मानू को बुला लें। आतिफ असलम। Honestly, I'm not even sure if I'd attend the festival as a massive introvert, but yeah, it would be nice. But I really like singers like RDB and UK Sahar just because they really lift the mood. I'm not a fan of slow singers, but then again, that's my personal opinion. So let's see what the majority votes for in that context. मैं ज़्यादातर सिर्फ अंग्रेज़ी गाने सुनती हूँ, बहुत वाइट वॉश हूँ तो नहीं, but I do listen to some उर्दू गाने। आतिफ असलम, आसिम अजहर भी हो सकता है, आतिफ असलम। Yeah, we're actually looking forward to it क्योंकि मैं, like I said, मैंने कभी attend नहीं किया तो। बयान We want Bayan and our DJ night, please. नहीं, DJ नाइट ना भी हो, कवाली हो, सुकून से बंदा बैठ के कवालियाँ सुने। ब्रो अब्दुल हनान प्लीज, हसन रहीम, अब्दुल हनान, मानू, एनीवन। अनूप जैन को लेकर आ सकते हो, उसको भी ले आओ प्लीज। हसन रहीम, आई रियली वांट कि वो आए और मैं उसका कॉन्सर्ट एंजॉय करूँ। हसन रहीम और पाकिस्तानी, और मैं इतने जानती नहीं, आई डू नो हसन रहीम, और ऑफ कोर्स आसिम अजहर और आतिफ असलम डेफिनेटली, अली जफर बहुत है। ठीक है, बुला ले। Is it Marshmallow Shah Rukh Khan? Was it that revealed or was that just a random teaser that was revealed in a video? We're not even sure. No. But yeah, we are familiar with Bollywood. A huge Bollywood fan. I love I'm whitewashed as hell as well, but I love Bollywood. I watch it. She loves Chikti Chameli. I love Chamak Chalo. That is my favorite song. Oh, that. Manu and one other. You can just invite Hassan Rayyan if I were you. But बयान अब्स के लिए Bayan is too good. Like call Ali Azmat then. कितने ऑफेंसिव लोग हैं। नहीं, बयान को अगर नहीं बुलाना तो फिर बुला लो। Ali Azmat is there obviously. नहीं, अली असमत नहीं यार, सब्र करो, कुछ दुल्हन ब्लोच को बुलाओ। Yeah. What will I do? That's a interesting question. I mean, I'll put more restrictions on drugs, maybe. Party! कैफे में वाईफाई, फेस्टिवल चाहिए, कैफे में वाईफाई, और ज़्यादा कॉन्सर्ट्स कराएंगे फरहान सईद का। बयान से आगे बढ़ जाए। बयान नहीं, मैंने आप थी, मैंने थी। We will make the days a bit short क्योंकि 9:30 to 4:30, 5:30 is too long. We don't like it. And group projects and theory classes are useless. So please, इतना नहीं हो सकता. बस test लो and that's it. Attendance थोड़ी सी like strictness कम कर दे। Yeah, because some people are genuinely sick and they just can't come to university, but you have to. And yes, खुदा आप बताएं। या मुझे बता दिया।
हाँ ये जो छुट्टियों वाला सीन है ये ज़्यादा बढ़ा दूँगी कि सिर्फ 4 छुट्टियाँ नहीं रखनी चाहिए एटलीस्ट स्वैट के लिए, क्योंकि स्वैट में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क ले लेते हैं, नॉट फिजिकल मेंटली वर्क भी ले लेते हैं, तो इसलिए जो है ना बच्चों को रेस्ट देना चाहिए. Make it liberal the way it was before. I miss the liberalism वाला factor. या मैं फ्री बसेस चलाऊंगा पूरे पाकिस्तान में. And yeah, I will improve the food quality and the cafeteria as well. Yeah. And the sitting area. I feel like we should have more events. Yeah. More events. The events are fun, but I feel like they're too small scale. Also, the cafeteria. We need more Add food. more items. We in the need food, cafeteria. actually. That's it, probably. Yeah, but other than that, it's great. Otherwise, it's doing a pretty good job. Yeah, very nice. मैं कुछ टीचर्स चेंज करना चाहूँगी. Yeah. Oh yeah. Yeah, कुछ डिपार्टमेंट्स के टीचर्स और हेड्स I would like to change them. मैं इसका आर्किटेक्चर चेंज करूँगी थोड़ा सा. अच्छी I really don't know. I think अब वैसे किसी काफ़ी अच्छा काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट हाँ जो इश्यूज वो अब सॉल्व नहीं कर सकते, आई थिंक मैं उनको ज़्यादा वर्क करूँगी. जैसे कि हॉस्टलाइट्स के बहुत सारे इश्यूज हैं, वाटर इश्यूज हो गया, फूड इश्यूज हो गया, बहुत सारे इश्यूज हैं हॉस्टलाइट्स के. एज कम्पेयर टू अस, हम लोग तो नॉर्मल डे स्कॉलर्स हैं, हमारे टाइम चल जाता है, हमें इतना मसला नहीं है, बट हॉस्टलाइट्स को बहुत ज़्यादा Obviously, मसला होता है. hostelites जो है हमारे ग्रुप के they're struggling a lot with the services available, ठीक है, और उनके इश्यूज नहीं आगे जा रहे, तो ऑब्वियसली वी वुड वांट कि हॉस्टलाइट्स, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम टाइम गुजारना है यूनिवर्सिटी में, एंड इफ देयर लाइफ इज नॉट गुड तो डे स्कॉलर्स की लाइफ डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है, हॉस्टलाइट्स को पहले केटर करें, उनके जो इश्यूज हैं, जो फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, फाइनल्स में जो पढ़ाई करनी है उन सारों ने, वो सब उसको देखें. ठीक है, दे नीड टू अटेंड टू द हॉस्टलाइट्स मोर. यहाँ पे जगह जगह पे लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनको बाहर वो तो they're already doing it. They're already doing it. I would listen to the students' opinion first and then make changes later. Because students come first and I come later. That's the thing. Because उनके concerns बहुत ज़्यादा होते हैं, so I might as well listen to their opinions. Then I'll make changes. To be honest, अगर मुझे VC बनाएंगे BNU का, तो मैं more of रात को इवेंट्स ज़्यादा कराऊंगा और ज़रा कैंपस लाइफ को ज़्यादा अवेयर करूंगा. अभी कैंपस लाइफ है लेकिन बहुत रात को बहुत ड्राई हो जाता है सीन, तो अब वेट करेंगे. हम वेट करेंगे. म्यूजिक